Our today's topic is urinary tract infection. It is the infection in the urinary tract anywhere in the kidney, ureters, bladder and the urethra. This is the urinary system. These are kidney, these are ureter, bladder and urethra and prostate in case of male. ठीक है, तो urinary tract infection is an infection anywhere in this urinary tract. Urinary tract infection is a bacterial infection in urinary tract. When it affects the lower urinary tract, it is called as simple cystitis. Cystitis का मतलब है inflammation of gallbladder. And जब upper urinary tract में होगा, then it is called as pyelonephritis. That is kidney infection. तो UTI is 50 times more common in women because जो woman है उसमें urethra की length कम है, male में urethra की length ज़्यादा है. With about 5% per year developing symptom, UTI is uncommon in man below 60 years of age, but the frequency is similar in men and women in older age group. Older age में frequency same है, but अगर adulthood में देखा जाए तो women में ज़्यादा chances है as compared to men. After that definition, a urinary tract infection is an infection involving the kidney, ureters, bladder or the urethra. Okay, these are the infection either in the urethra, bladder, ureter or in the kidney. जब kidney में होगा that is called as pyelonephritis. अगर bladder में है तो cystitis. These are the structure that urine pass through before being eliminated from the body. जैसे normally जो urine की formation है that is in the kidney. nephron से urine की formation होती है, nephron से kidney में आएगा urine, kidney से ureters में, ureter के through bladder में और bladder से urethra के through outward excretion होगी. आफ्टर दैट द कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग यूटीआई. कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करते हैं? दैट इज 80% केसेस में एशर्चिया कोलाई देखा गया है. देन एंट्रोकोकस, क्लैब्सिला, एंट्रोबैक्टर, प्रोटियस, सीडोमोनास, Staphylococcus and Candida albicans. These are the most common organism which are causing the UTI. और 80% cases में UTI is caused by the Escherichia coli. After that, the classification of urinary tract infection. These are classified into various types. Asymptomatic bacteremia. एसिम्टोमेटिक मतलब इसमें पर्सन को कोई सिम्टम अपीयर नहीं होंगे और इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. तो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द यूरिन. ठीक है, दैट अकर विदाउट यूजुअल सिम्टम. यूरिन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे बट पेशेंट को कोई सिम्टम प्रेजेंट नहीं होंगे, सच एज बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन. आफ्टर दैट एक्यूट सिस्टाइटिस. Cystitis is the inflammation of urinary bladder. It indicates the inflammation of urinary bladder wall. After that, acute pyelonephritis. It is the inflammation of renal parenchyma. Pyelonephritis is the inflammation of the kidney. ठीक है, तो इसमें रीनल पैरेंटकाइमा और कलेक्टिंग जो डक्ट है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है. एक्यूट यूरिथ्राइटिस. यूरिथ्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिथ्रा and prostatitis is the inflammation of the prostate gland which is present in the male. तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कब कॉम्प्लिकेटेड बोलेंगे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो गया है? जब ये अपर ट्रैक में होगा, जैसे कि किडनीज में है. ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन है. या द पर्सन हैज डायबिटीज मेलाइटस और पर्सन इज प्रेग्नेंट, पर्सन इज अगर मेल है और द पर्सन हैज अ वीकेंड इम्यून सिस्टम. तो अगर वीकेंड इम्यून सिस्टम है तो इट मे ट्रांसमिटेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. आफ्टर दैट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. नॉर्मली जो यूरिनरी ट्रैक है अबव यूरिथ्रा इट इज स्टेरल, बिल्कुल स्टेरल है, बट सेवरल कुछ ऐसे मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो हमें यूटीआई से प्रिवेंट करते हैं, सच एज द एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर, कंप्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर, यूरिथ्रोवेसिकल जंक्शन
और पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी, जिसकी वजह से यूरिन ब्लैडर में प्रोपेल होगा। और जो भी यूरिन है, नॉर्मली जो यूरिन की पीएच है इट इज एसिडिक, लेस देन 6 इसकी पीएच है, एवरेज इज 4.6 to 6 इसकी pH है, तो it is slightly acidic. So due to acidic pH, the bacteria it is having antibacterial action. And high यूरिया concentration और यूरिन में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होती है विच इंटरफेयर विद द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये सारे जो मैकेनिज्म है ये हमारे यूरिनरी ट्रैक को स्टेरल रखते हैं और यूटीआई से प्रिवेंट करते हैं। आफ्टर दैट clinical manifestation, sign and symptom include a strong persistent urge to urinate. पर्सन को strong urge होगा बट यूरिनेशन पर्सन को क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और बर्निंग सेंसेशन व्हेन यूरिनेटिंग, जब पर्सन यूरिन पास करेगा तो बर्निंग सेंसेशन पर्सन को होगी। पासिंग फ्रीक्वेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, फ्रीक्वेंट बार बार यूरिन पास करेगा बट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। यूरिन दैट अपीयर्स क्लाउडी, ठीक है, यूरिन का कलर भी कैसा होगा, क्लाउडी होगा। एंड यूरिन दैट अपीयर रेड, कलर क्या क्या हो सकता है, रेड कलर हो सकता है, ब्राइट पिंक, कोला कलर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। एंड जो यूरिन है फाउल स्मेलिंग, स्ट्रॉन्ग स्मेल यूरिन प्रेजेंट होगा। पैल्विक पेन होगी, जिसको फ्लैंक पेन भी बोल सकते हैं, फ्लैंक पेन हो सकती है इन वोमेन स्पेशली इन द सेंटर ऑफ द पेल्विस अराउंड द एरिया ऑफ द प्यूबिक बोन। आफ्टर दैट असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, हिस्ट्री लेंगे साइन एंड सिम्टम से रिगार्डिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, लोकेशन ऑफ पेन शुड बी चेक्ड एंड यूरिन टेस्ट शुड बी डन। यूरिन इट इंक्लूड यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर एंड क्लीन कैच सैंपल। क्लीन कैच सैंपल एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें यूरिन को कलेक्ट किया जाएगा और इसमें कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। And ultrasound can be done. Ultrasound is also a non-invasive imaging test that is used to screen the hydronephrosis. Hydronephrosis is the swelling in the one or both of the kidney. It is the presence of water in the one or both of the kidney. ठीक है, अब तो एक्सरे में हाइड्रोनेफ्रोसिस का पता चल सकता है। देन एक्सरे स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी चेक करने के लिए करेंगे, सच एज यूरिथ्रल नैरोइंग, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर। नेक्स्ट है वॉइडिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राम, इसमें इट इज द एक्सरे ऑफ द ब्लैडर और द यूरिथ्रा। सिस्टो मतलब ब्लैडर और यूरिथ्रो मतलब यूरिथ्रा, ठीक है। तो इट इज द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ ब्लैडर एंड द यूरिथ्रा। तो to obtain a cystourethrogram, a dye called contrast material is injected through a catheter. कैथेटर से डाई इंजेक्ट करेंगे यूरिथ्रा में और ब्लैडर में, और उसका फिर एक्सरे एग्जामिनेशन करेंगे। आफ्टर दैट आईवीपी स्टैंड फॉर इंट्रावीनस पाइलोग्राफी। इट इज ऑल्सो एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द किडनी। इसमें भी कॉन्ट्रास्ट मीडियम इंजेक्ट करते हैं बट इट इज इंजेक्टेड इनटू द वेन में इंजेक्ट करेंगे, किडनी वेन्स में, रीनल वेन्स में। आफ्टर दैट एक्सरे इमेजेस शुड बी taken. So it is also used to check the abnormality or any type of obstruction. After that cystoscopy is the visualization of urinary bladder to check any mass, any tumor, etc., due to which there may be obstruction in the passing of urine and which may lead to UTI. So after that CT scan can also be done. In CT scan can be done to check for kidney stones or any type of other obstruction, blood culture for any type of infection. After that medical मैनेजमेंट में फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट आ जाती है। फार्मेकोलॉजिकल में एंटीबायोटिक्स, एंटीबैक्टीरियल एजेंट शुड बी गिवन टू द patient such as cephalosporin, trimethoprim, ciprofloxacin, levofloxacin, nitrofluoretine, etc. should be given. And long term pharmacological therapy, अगर जो पर्सन है उसको severe UTI है then long term pharmacological therapy should be done. तो इसमें भी antimicrobial therapy should be given to the patient. And after treatment the sterilization of urine, low dose preventive therapy each night at bedtime is often prescribed. And patient education should be given. क्या education देंगे?
पेशेंट को बोलना है कि डू नॉट डिले यूरिनेशन व्हेन इट इज़ नेसेसरी, कि अगर यूरिनेशन आया है, यूरिन पास करना है तो उसको डिले नहीं करना है. हाई फ्लूइड intake is essential. At least 2 to 3 liter of fluid intake can be taken. Then जो urethral meatus है that should be cleaned after the intercourse to prevent the UTI. And drink at least 250 to 500 ml of cranberry juice daily. And often long course of low dose antibiotics should be taken at night to help prevent unexplained cases of reoccurring cystitis. ताकि बार बार cystitis ना हो तो low dose antibiotic should be taken. After that nursing मैनेजमेंट. नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से रिगार्डिंग साइन एंड सिम्टम ऑफ द UTI एंड such as presence of pain, location of pain, frequency of urination, urgency, hesitancy. तो ये सारी चीज़ें चेक करनी है. पेशेंट की लोकेशन क्या है, पेशेंट को यूरिनेशन अर्जेंसी है, हेजिटेशन हो रही है यूरिनेशन में, है ना, मतलब प्रॉपरली यूरिन पास नहीं हो रही है. एंड पेशेंट को नॉलेज प्रोवाइड करना है रिगार्डिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन एंड हाउ टू प्रिवेंट फर्दर रीअकरेंस ऑफ डिजीज़, की कैसे फर्दर डिजीज़ को रीअकर होने से प्रिवेंट करना है. आफ्टर दैट नर्सिंग डायग्नोसिस, इट इंक्लूड एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फेक्शन within a urinary tract as manifested by pain on urination, suprapubic pain or bladder spasm. तो intervention क्या होंगे, assess the location, duration, onset or level of pain and provide comfortable position to the patient, reassure and provide diversional therapy, give psychological support to the patient, apply heating pad to painful area or provide analgesic to the patient. जो medication है that should be written in the last. After that impaired urinary elimination related to UTI as manifested by urgency, frequency, incontinence or hematuria and verbalization of concern over altered elimination pattern. तो इसमें assess करना है any changes in the voiding pattern of the patient and इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को रिगार्डिंग सिम्टम्स. एनकरेज द पेशेंट फॉर इंक्रीज फ्लूइड इनटेक. इंक्रीज करने के लिए बोलेंगे एडमिनिस्टर एंटीमाइक्रोबियल मेडिकेशन एंड टेल पेशेंट टू ऑब्जर्व यूरिन फॉर इट्स कलर, ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट. Then increased body temperature related to infection as manifested by elevation in temperature, tachycardia, chills or मलेज. तो वाइटल साइन चेक करने हैं एवरी 2 to 4 आवर्ली. एंटीबायोटिक्स शुड बी एडमिनिस्टर्ड. हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करना है. इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है. कवर पेशेंट एंड कीप हिम ड्राई एंड प्रोवाइड कूलिंग स्पॉन्ज बाथ और कॉम्प्रेसिस इन केस ऑफ हाइपरथर्मिया. तो दिस इज ऑल अबाउट टॉपिक.